So hello guys, welcome back to our YouTube channel. In this video, we study class 6 chapter number 3 of history Harappan civilization. In this lesson, we study in detail about Harappan civilization. So you do not subscribe to our YouTube channel, so please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest update. Okay guys, so 3.1 we study the Harappan civilization, how they occur and which bank of river they situated, where is they situated, house and town planning, that time how their town plannings, seals and pot, their stamps and their pots, how to making process we study. The Great Bath. In 3.4 we study Great Bath, life in Harappan civilization, their peoples how live in Harappan civilization, in which country trade कैसे थी, how trade began and from where they their trades was spread. Reason for describe the Harappan civilization, discipline of Harappan civilization. So in this video we only study the Harappan civilization, house, town planning and seal spot. Then Great Bath. In the another video we study life in Harappan civilization and trade and reason of discipline. Okay guys, so simply we started from, do not waste your time, and I will started the video. So Harappan civilization 3.1 Harappan civilization. Harappan civilization archaeological excavation first began in 1921 CE at Harappa in Punjab on bank of river Ravi. That is how this civilization came to be known as Harappan civilization. It is also known as Indus civilization. जो आर्कियोलॉजिक एग्जीबिशन फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1921 सीई में. नोट इन योर नोटबुक आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन फर्स्ट बिगिन इन 1921 एट हरप्पा in Punjab on river Ravi, bank of river Ravi. The question in the paper there were many questions from Harappan civilization. The very mass in Harappan civilization. That is how this civilization came to be Harappan civilization. ये civilization को Harappan civilization नाम कैसे दिया गया, ये भी हम जानने वाले हैं. और उसे इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता था. Excavation were also carried out at Mohenjo-daro, a place about 650 km to the south of Harappa in Indus Valley. There was a striking resemblance between the remains of structure and artifact found at two places. Similar remains have been found at Dholavira, Lothar, Kalibangan, Daimabad, etc. So 650 किलोमीटर दूर हरप्पन सिविलाइजेशन से 650 किलोमीटर दूर एक मोहनजो दारो नाम का एक सिविलाइजेशन था. वहाँ पर भी इसी तरह की एक्सकेवेशन हुई थी. वहाँ पर भी सेम थिंग मिली थी. जो हरप्पा में मिली थी वही मोहनजोदारो में मिली थी. और हरप्पा में जो मिली थी वो हम आगे सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं इन डिटेल. तो और कई जगह पे ऐसे ही कई अवशेष, मतलब ऐसी चीज़ें मिले जो अलग अलग सेम जगहों पर वैसी ही थी. कौन कौन सी हम जानते हैं? धोलावीरा, लोथार, कालीबंगन, दायमाबाद. So in the paper the question has also come, in which places the Harappa's things come. ये सब आते हैं.
So please you note in your notebook and diary, this similar remain has been found at Dholavira, Lothar and Kalibangan, Daimabad. So please write down for the video and देख सकते हैं यहाँ पर, आपको नहीं मालूम तो यहाँ पर उसका फ़ोटो दिया गया है। ये जो है ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदारो है। देन हियर इज धोलावीरा, लोथार, दाइमाबाद, हियर इज अ दाइमाबाद, ओके, कालीबंगन, हियर इज सम, ओके गाइस। Generally, the same characteristics are seen in all places of Harappan civilization. मैंने पहले ही बोला वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर भी मिले और यहाँ पर भी मिले, हड़प्पा में मिले और धोलावीरा, मोहनजोदारो, यहाँ सभी जगह मिले। कौन कौन उसमें क्या क्या इंक्लूड था, यू नो दैट? नो, you do not know, so I will tell you. Town planning, roads, construction of house, drain system, seal spot and toys of burial custom. ये सभी चीज़ें, टाउन प्लानिंग, रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ड्रेन सिस्टम, ये जो सभी चीज़ें थी, वो जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती थी हड़प्पा में, वही धोलावीरा, लोथार, कालीबंगन, यहाँ पर भी चीज़ें, दाइमाबाद, यहाँ पर सेम चीज़ें यूज़ होती थी। यहाँ पर अभी हम जानने वाले टाउन हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग। अभी हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों, ओके। हाउस एंड अदर स्ट्रक्चर। The house and other structure in Harappan civilization were mainly built with baked brick. In some places, unbaked brick and stone were also used for construction. The house had room built around the central courtyard. The house had well bathroom and toilet. There was an excellent drain system in which baked earthen conduct were used. The street had covered drain built with brick. This show great concern regarding public health. अभी यहाँ पर टाउन प्लानिंग के बारे में हम पूरे जानने वाले हैं। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो बेक ब्रिक मतलब भुनी हुई ईंटों से घर बनाए जाते थे, और कई जगह भुने से ब्रिक से, ईंट से बनाते थे, उन्हें भूनते नहीं थे, कुछ नहीं, ऐसी कच्चा, दैट यू लाइक। जो अपना अभी क्या होता है, जो कोर्टयार्ड होता है, आंगन होता है, वो बाहर होता है, ओके। दैट टाइम देयर वर अ कोर्टयार्ड इन द सेंटर ऑफ द हाउस, ओके। जब के टाइम में जो कोर्टयार्ड था वो सेंट्रल होता था, उस टाइम के घर में वेल्स होते थे, मतलब कुएं होते थे, कुआं पानी रखने। दैट टाइम देयर वेर नॉट अ टैंक, सो दे यूज वेल इन देयर हाउस। बाथरूम थे, टॉयलेट भी थे। वहाँ पर जो नाला था, क्या था मीन्स जो गटर होती है, यहाँ से भी गटर होती है, इधर भी गटर होती है। देयर इज़ अ रोड एंड देयर दिस इज़ अ गटर। ऐसे टाउन प्लानिंग होते थे पहले, अभी भी होते हैं। द स्ट्रीट वेयर ब्रॉड एंड लेड आउट इन ग्रिड पैटर्न। हाउस वेयर बिल्ड इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्रिएटेड बाय देम। जो स्ट्रीट होती थी वो ग्रिड पैटर्न में होती थी। मैं लास्ट में आपको ग्रिड पैटर्न, व्हाट इज अ ग्रिड पैटर्न, आई विल टेल यू इन डिटेल इन लास्ट ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो। हाउसेस वेयर बिल्ड जो रेक्टेंगुलर शेप में बने होते थे, ये हो गया। तो इस तरीके शेप में ये घर बने होते थे। The town was divided into 2 or more sections and each section had separate fortification. अभी घर में, ये घर है आपका,
आपका नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो घर था, अभी ये इतना है और इतना है. देन here 1 2 3 and 4 and this is a 5 and here is a 6. this is a courtyard. ऐसे 4 या 5 6 जितने भी ब्लॉक्स होते थे, बहुत सारे ब्लॉक्स होते थे. यहाँ पर ट्रायल दिया गया है, आप यहाँ पर रीड कीजिए. देन आप मुझे बताइए आपने किया या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मैंने किया सर वगैरह वगैरह. अभी 3.3 seals and pot, stamps and pots. The seals of Harappan civilization were mainly built square shape and made from a stone called statid. अभी जो सील्स होते थे, अभी के टाइम में जो सील्स है वो सर्कुलर शेप में आते हैं, जबकि टाइम में स्क्वायर शेप में वो स्टैम्प्स आते थे, स्क्वायर शेप में आते थे. जो स्टैम्प के लिए जो स्टोन लगता था उसे स्टैटिड बोला जाता था. अभी यहाँ पर यू नोट इन योर नोटबुक द स्टोन विच मेड दिस स्टैम्प मेड विद द स्टोन इज कॉल्ड एज स्टैटिड. नोट्स भी बना लीजिए, मैं भी जो बोलता हूँ वो प्लीज़ नोटबुक में नोट कीजिए और बाद में अच्छे से लिखिए. दिस सील्स बियर पिक्चर ऑफ एनिमल्स के पिक्चर होते थे. एनिमल के पिक्चर में क्या इंक्लूड होता था? रियल एनिमल लाइक बुल, बफेलो, ऑक्सन, एलिफेंट, डायनासोर, टाइगर्स, बफेलो एक्सेट्रा. ये सब यूज रियल एनिमल कौन से बुल होते थे, ऑक्सन होते थे, गाय, बछड़े, एलिफेंट, बहुत सारे एनिमल्स है वो सारे यूज होते थे. और ह्यूमन जो इमेजिनरी ह्यूमन मतलब सोच कल्पना से बनाया जाता है ह्यूमन, उसका भी पिक्चर वहाँ पर ड्रॉ किया जाता था. वो सील्स को स्टैम्प्स के ज़रिए वो बोलते थे, सील्स होते थे उसे जो बोलते थे स्टैम्प बोलते थे. अर्थन पॉट ऑफ वेरियस टाइप एंड शेप हैव बीन फाउंड एट एक्सकवेशन sites of Harappan civilization. There are red terracotta pots which pattern and design in a black color. The pattern include fish lasses, interlocking circle, people leaves, etc. अभी यहाँ तक मैं आपको समझाता हूँ. वहाँ के जो पॉट थे उन्हें ब्लैक कलर दिया जाता था हड़प्पा में, और वहाँ पर फिश के पैटर्न, फिश बनाए जाते थे, फिश का फोटो डिज़ाइन किया जाता था बहुत सारे. दी हड़प्पा पीपल बरीड देयर डेड. दे यूज टू बरी अर्थन पॉट विद देयर बॉडी. वो क्या करते थे, बॉडी के साथ वो भी दे देते थे पॉट. यहाँ पर 3.4 द ग्रेट बाथ और स्पेशियस, ये हमारा लास्ट का टॉपिक है इस वीडियो का. देन दी 3.6 3.7 वी स्टडी इन द next video, next period. A spacious bath has been discovered at Mohenjo-daro. The tank in the Great Bath was nearly 2.5 meter deep. It was 12 meter long and 7 meter wide. It was lined with baked brick to prevent seepage of water. There were steps leading down to the tank. There was also a provision for running, cleaning and refilling the tank from time to time. अभी बहुत बड़े बड़े बाथ होते थे मोहनजोदारो में. बाथ जो नहाने की जगह है वो मिली है. जो नहाने की बात है वो 2.5 मीटर डीप है, 12 मीटर लॉन्ग है, 7 मीटर वाइड है. सो नोट इन योर नोटबुक दी मोहनजोदारो एग्जीबिशन. दी ग्रेट बाथ फाउंड द ग्रेट बाथ डीप 2.5 मीटर डीप एंड 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड. ओके, अभी इतना मैंने पढ़ा दिया है आपको. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत क्लीन किया जाता था उसे,
पूरा क्लीन क्लीन है। अभी देख सकते हैं ग्रेट बाथ है, देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा इसे ग्रेट बाथ बोला जाता है मोहनजोदाड़ो का। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।